Okay. So, welcome back, my dear students. We will continue with the proteins in the topic biomolecules. After finishing carbohydrates, we will now continue with the protein part. And as we all know, proteins are one of the most important constituents required for the development and growth of cells. So all living organisms, they have proteins as an essential ingredient in their body, and this protein molecule consists of large number of alpha amino acids that we had seen. So when we hydrolyze a protein molecule, now protein molecule is made up of, है ना? So when we hydrolyze this protein molecule, what we get? A large number of alpha amino acids. Large number of alpha amino acids. So a single protein molecule can have thousands of alpha amino acids, and the sequence of alpha amino acid is very specific for each protein. जैसे some protein which are used for hydrolyzing carbohydrate, उनका अमाइनो एसिड का सीक्वेंस अलग रहेगा. दूसरा एक प्रोटीन है जो बाकी कन्वर्शन करेगा, जैसे एंजाइम्स इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स है, वो अपना पर्पस जो है उसके लिए उनका अमाइनो एसिड सीक्वेंस रहेगा. जैसे हमारे माउथ में अमाइलेज जो एंजाइम है, दैट कम्स विच इज ऑल्सो प्रोटीन इन नेचर. तो प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, and amino acids have specific sequence, and that sequence has to be maintained. So every enzyme has a peculiar specific sequence of amino acids, and this sequence decides the role of protein molecule. So yesterday we had seen how to get an alpha amino acids. So basically alpha amino acids are nothing but carboxylic acid. Carboxylic acid. अब यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, एसिटिक एसिड. And on the alpha carbon of this acetic acid molecule, there are 3 alpha hydrogen atoms. If one of the alpha hydrogen is replaced by an amino group, primary amino group NH2, then we get a alpha amino acid. तो देखिए ये एसिटिक एसिड का अल्फा अमाइनो एसिड बन गया, है ना? So in general we call as alpha amino acid from acetic acid. And alpha amino acid, I told you the name of this is glycine. So this is alpha carbon. If amino group is bonded to alpha carbon of a carboxylic acid, then we call as alpha amino acid. Now this alpha amino acid available in protein molecule in the L configuration. It is available in the N configuration. L configuration of this alpha amino acid. तो जब हाइड्रोलाइज करेंगे अल्फा अमाइनो एसिड मिलेगा और उसका कॉन्फ़िगरेशन एल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा. एल कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिनोट करेंगे? व्हेन NH2 ग्रुप यानी अमाइनो ग्रुप इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड,
in a Fisher in a fish in a Fisher projection formula in a Fisher projection formula, then that configuration is known as L configuration. जैसे ये जो स्ट्रक्चर है इसको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर ने क्या बोला था, ओपन चेन स्ट्रक्चर के लिए एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जो बीच में ये क्रॉस आ गया, ये कार्बन चेन, sorry, this is the central carbon, this is the central carbon, on one side COOH, on the other side 2 hydrogen atom, and here is amino group. So this amino group is on the left hand side and it is L-glycine. It is L-glycine. तो ये याद रखेंगे, L कॉन्फ़िगरेशन में NH2 ग्रुप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा. We can have example for this. अब एक जनरल, what is the general formula for amino acid? General formula for amino acid. ये तो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से इजी था, आपको समझा दिया हमने. एसिटिक एसिड का अमाइनो डेरिवेटिव, so we call it as ग्लाइसिन. एक जनरल फॉर्मूला क्या बनता है अमाइनो एसिड का? जनरल फॉर्मूला फॉर अमाइनो एसिड इज NH2 एक टर्मिनल रहेगा हमेशा, दूसरा टर्मिनल कार्बोक्सिल ग्रुप रहेगा, एंड हियर 1 R and hydrogen atom. So this is the general formula for alpha amino acid. For alpha amino acid, this is the general formula. For alpha amino acid. Okay? This R can be a different. This R can be any functional group, alkyl group, aryl group. R can be equal to an alkyl group, aryl group, or any other functional group. Any other functional group. So we get number of alpha amino acid by substituting different group at the position R. Okay. Now alkyl group is here as in substitution of R we get an alkyl group. So यहाँ we get an alpha amino acid CH3 लगाते हैं वहाँ पर, we put a CH3 here, CH3H COOH, since R is equal to methyl group, R is equal to methyl group, and this is what we call as alanine. Another protein after glycine, this is the next protein we have. Okay, alanine. अब ये CH3 के जगह आप C2H5 लगा दीजिए, है ना. You can get a different जैसे यहाँ पर CH2H CH3 CH3H, टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए, and here is H and COOH. नेक्स्ट मिल गया आपको यहाँ पर प्रोटीन मॉलिक्यूल, and next protein molecule is what we call as valine. So that means if R is replaced by other group, we get a series of alpha amino acids. Now the point to be noted in alpha amino acid, the point is except glycine, all
alpha amino acids are optically active except glycine. All alpha amino acids are optically active as they possess what? They possess chiral center और chiral carbon atom. जैसे ये एलेनाइन में देखिए आप, ये सेंट्रल कार्बन हो गया and this central carbon is a chiral carbon because it is bonded to 4 different, so it is optically active alanine. Next वेलाइन में देखेंगे आप, तो वेलाइन में भी ये ग्रुप डिफरेंट and 3 other, it is again found to be optically active. So all these alpha amino acid except glycine, this is not going to be optically active because it is having 2 similar group on the central carbon and CH2, है ना? So it cannot be optically active while all other are going to be optically active. Now the next point comes in alpha amino acid that can classify if R is equal to carboxylic group. एक तो ऑलरेडी है, एक और कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया. If A is equal to, if R is equal to carboxyl group, कवर करना है. If R is carboxyl group, then it is known as acidic alpha amino acid. Then it is known as acidic alpha amino acid. Okay. R अगर कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया वहां पर, एसिड ग्रुप आ गया, तो वो वाला अमाइनो एसिड एक कैटेगरी में जाएगा जिसको हम बोलेंगे एसिडिक एसिड. दूसरा क्या हो जाएगा? इफ R is equal to an amino group. Amino group. अब amino group why I am writing? Because it can be a primary, it can be a secondary, it can be a tertiary. So if R is an amino group, primary, secondary or tertiary, then this alpha amino acid, then it is known as basic alpha amino acid. तो आपको A टाइप मिल रहा है एसिडिक अल्फा अमाइनो एसिड, B टाइप मिल रहा है बेसिक अल्फा अमाइनो एसिड, और C टाइप मिल जाएगा न्यूट्रल अल्फा अमाइनो एसिड. न्यूट्रल अल्फा अमाइनो एसिड. न्यूट्रल अल्फा अमाइनो एसिड में R is equal to न्यूट्रल मॉलिक्यूल. न्यूट्रल मॉलिक्यूल लाइक ये CH3 हमने सब्स्टिट्यूट किया, न्यूट्रल हो गया. ये डाइमिथाइल ग्रुप हमने सब्स्टिट्यूट किया, यानी प्रोपाइल हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो ये भी न्यूट्रल हो गया. Such molecules are neutral alpha amino acid. So that means amino acids are classified into 3 types. Alpha amino acid, acidic in nature when it is having additional acidic group at the position of R. Basic amino acid कब होगा? जब R को substitute कर देंगे amino group से. Likewise, neutral alpha amino acids when R is जनरल फॉर्मूले में R रिप्लेस करेगा कोई अल्काइल ग्रुप से या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से,
we get the third type is neutral alpha amino acid. तो एक क्लासिफिकेशन मिल गया आपको. Amino acids are classified into three types: acidic alpha amino acid, basic alpha amino acids, and neutral alpha amino acids. एक दो एग्जाम्पल आपके बुक में से ही यहाँ लिख के मैं समझा देता हूँ कि कैसे हम कंसिडर करेंगे उसको. वो न्यूट्रल है या बेसिक है. वी टेक हियर टू alpha amino acid molecule. The first one is tryptophan. Tryptophan. Here is tryptophan, and it is having this substituent CH2, CHNH2, COOH, tryptophan. Another example is histidine. हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा बन रहा है. देखिए हिस्टिडीन मॉलिक्यूल. It is a nitrogen containing heterocyclic. Both are nitrogen containing heterocyclic, and it is CH2 CH NH2 COOH. Name is histidine or histidine. इसमें से न्यूट्रल कौन सा है और अल्कलाइन या एसिडिक? क्लासिफाई इनटू एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. कैसे इसको समझेंगे हम क्लासिफाई है? तो अगर ट्रिप्टोफैन को आप देखते हैं तो ट्रिप्टोफैन में क्या दिख रहा है? वन कार्बोक्सिल ग्रुप, वन अमाइनो ग्रुप. और कोई ग्रुप है क्या? एक है यहाँ पर, ये NH है ना. ये NH तो एक है. तो स्ट्रक्चर में देखेंगे NH2COOH और NH जो है ये रिंग में है. करेक्ट है. ये NH जो रिंग में है, दिस विल नॉट लूज इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो लूज नहीं करेगा. तो ये हो जाएगा न्यूट्रल. ट्रिप्टोफैन इज न्यूट्रल. आप देखेंगे तो इट इज फाउंड टू बी न्यूट्रल अल्फा अमाइनो एसिड, है ना. बैलेंस हो गया. हिस्टिडाइन को देखते हैं या हिस्टिडीन को. व्हेन वी सी हिस्टिडीन, व्हाट वी सी अगेन वन कार्बोक्सिल ग्रुप, वन अमाइनो ग्रुप है. ये कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप, तो ये भी बैलेंस हो गया. बट इट इज हैविंग टू नाइट्रोजन एटम इन द रिंग which will provide some electron density to it. Directly bonded होने से two nitrogen, here this is tertiary and this is secondary nitrogen. Therefore histidine is found to be basic in nature. So tryptophan is neutral, histidine is basic. We decided it on the basis of the presence of group which are replaced by R. देखिए यहाँ R समझ में आएगा क्या आपको? R कौन सा ग्रुप हुआ? ये ग्रुप हो गया पूरा R. ये ग्रुप पूरा हो गया R. क्योंकि रेस्ट क्या है? देखिए जरा यहाँ पर CH NH2 COO. CH है बेटा, ये कार्बन, ये CH, ये COOH and this is NH2. करेक्ट. तो ये
R ग्रुप आ गया और ये R ग्रुप आ गया, ये R और ये R ग्रुप आ गया। तो अल्फा अमाइनो एसिड्स में आपने क्लासीफाई कर लिया कि न्यूट्रल कैसे फाइंड आउट करें और एसिडिक या बेसिक कैसे फाइंड आउट करें। अब अगर एसिडिक को फाइंड आउट करना तो एक एग्जाम्पल एसिडिक का भी लिख लेते हैं हम, COOH CH CHNH2 COOH. Now very clearly visible in the third example, है ना, third example, दिस इज व्हाट R, ये CHNH2 COOH। अब क्या हो गया, कार्बोक्सिल ग्रुप दो हो गए, दो कार्बोक्सिल ग्रुप आ गए, तो इसका नेचर क्या बनेगा, एसिडिक। दिस इज एसिडिक इन नेचर एंड इट इज एस्पार्टिक एसिड, इट इज एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। सो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिख रहा है, एक बेसिक दिख गया और एक एसिडिक हो गया। तो क्लासीफाई किया आपने अल्फा अमाइनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल ग्रुप। R is being replaced by a neutral molecule, R is replaced by basic molecule, R is replaced by acidic group. We call them as acidic alpha amino acid. Okay. After this classification, what we see here that alpha amino acids are also available in various other form. जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं एलेनाइन का। एलेनाइन में क्या था, फॉर्मूला अगर लिखना है तो CH3 CH NH2 COOH, सही है। तो ये एलेनाइन हो गया। अब एलेनाइन में या ऑल अल्फा अमाइनो एसिड, एक अभी जनरल समझाता हूँ फिर एलेनाइन लेता हूँ, तो जनरल टर्म को यूज करते हैं। ऑल अल्फा अमाइनो एसिड्स आर अवेलेबल एज डाइपोलर मॉलिक्यूल, डाइपोलर मॉलिक्यूल known as Zwitter ion। जैसा ट्विटर होता है ना, वैसा डाइपोलर आयन। अब इसको मॉलिक्यूल भी बोल रहे हैं, इन द प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ Zwitter ion। ये कैसे हो रहा है, डाइपोलर मॉलिक्यूल। और Zwitter आयन कैसे बनता है इसको समझेंगे आप। जैसे एलेनाइन को लिया हमने, वी राइट स्ट्रक्चर ऑफ एलेनाइन, NH2 CH CH3 COOH, ये बना अपना ओरिजिनल एलेनाइन। अब इस एलेनाइन में Zwitter आयन कैसे क्रिएट होगा ये समझेंगे हम, है ना। Zwitter आयन बाय हाइड्रोलाइजिंग थ्रू प्रोटॉन ट्रांसफर, है ना, एक प्रोटॉन ट्रांसफर करेंगे इसमें। तो क्या बनेगा, अब प्रोटॉन कहाँ से निकल सकता है, प्रोटॉन ट्रांसफर कहाँ से होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप से। प्रोटॉन तो यहीं से, क्योंकि एसिड गिव्स H+ आयन एंड H+ आयन इज अ प्रोटॉन। तो यहाँ से एक प्रोटॉन ट्रांसफर करते, प्रोटॉन कौन गेन कर सकता है, अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप कैन गेन अ प्रोटॉन एंड बिकम NH3। NH3 बन गया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, रेस्ट विल रिमेन एज इट इज। रेस्ट से मतलब है मिथाइल ग्रुप एंड हाइड्रोजन,
एंड व्हाट हैपेंस टू दिस कार्बोक्सिल ग्रुप, इसने तो अपना प्रोटॉन लूज किया, तो ये कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो गया, COO विथ नेगेटिव चार्ज। डिफरेंस समझा क्या दोनों में? ये आपका एक नॉर्मल अल्फा अमाइनो एसिड एलेनाइन, दिस इज एलेनाइन अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ज्विटर आयन। डाइपोलर दिख रहा है क्या अब आपको, है ना? पोलैरिटी एक ही मॉलिक्यूल में नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल बन गए, दिस इज हाईली रिएक्टिव, वी कॉल इट एज ज्विटर आयन। तो प्रोटॉन यूजुअली ये फॉर्म में अल्फा अमाइनो एसिड यूजुअली ये फॉर्म में अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ ज्विटर आयन। अब इसी को दो अलग तरीके से, जैसे जो इसका pH नोट डाउन किया गया, इट इज अराउंड 6, pH इज अराउंड 6। हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल pH जो बोलते हैं हम, है ना, फिजियोलॉजिकल pH जो लगता है वो है 7.4, यानी हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, जो भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होती है उसके लिए pH 7.4 यानी अल्कलाइन pH लगता है। हमारा ब्लड भी अल्कलाइन नेचर होता है ना? तो pH जो है वो 7.4 है। तो यहाँ ये प्रोटीन जब ज्विटर आयन में आता है तो अराउंड 6 pH का हो जाता है। अब इसी में ये पॉसिबिलिटी देखिए, ज्विटर आयन तो बन गया, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर ये NH3 प्लस एक बन जाए और COOH, ये प्रोटॉन बाहर से अगर गेन करता है तो ये बनेगा NH3 प्लस। तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया इस पे? ओवरऑल चार्ज is +1 and therefore its pH is less than or equal to 2, यानी ये पूरी तरह से एसिडिक pH हो गया। किसके कारण? कार्बोक्सिल ग्रुप के कारण इस एलेनाइन का जो pH है वो लेस देन और इक्वल टू 2, यानी एसिडिक pH हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है NH2 CH3, here is H and COO minus 1, COO minus 1। तो इसमें ओवरऑल चार्ज कितना दिख रहा है अपने को? -1, ओवरऑल चार्ज is -1, so its pH is greater than or equal to 10, greater than or equal to 10। तो यहाँ पर ये डेंजरस pH हो जाता है, दिस इज अगेन डेंजरस। तो कौन सा pH ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा? 6 pH या फिर एलेनाइन अपने नॉर्मल फॉर्म में है। तो ज्विटर आयन इज ए डाइपोलर मॉलिक्यूल which is having a negative pole and a positive pole present in a single molecule. So these are the three forms of alanine, A, B and C form of alanine. So this is about alpha amino acids. Now next point comes that this alpha amino acids are bonded through amide or peptide linkage, है ना? क्योंकि प्रोटीन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। तो ये अल्फा अमाइनो एसिड्स को लिंक तो करके रखना पड़ेगा, बॉन्डिंग तो चाहिए, नहीं तो कैसे अल्फा अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। सो दे आर बॉन्डेड थ्रू amide or peptide linkage. So next point we take amide or peptide linkage
in protein molecule, in proteins. ये कैसे पता लगा? ये भी वही हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से. When protein is hydrolyzed, or broken down with the help of an enzyme named as peptides into peptides in stomach and duodenum, in the influence of enzyme pepsin, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल लिया और इसको एंजाइम पेप्सिन, this is an enzyme, it provides large number of alpha amino acids plus some peptide or amide linkage, or the bond we call. So प्रोटीन, वैसे तो पहले प्रोटीन ब्रेक होता है पॉलीपेप्टाइड्स में, और पॉलीपेप्टाइड्स फिर ब्रेक होते हैं लार्ज नंबर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड. तो ये हाईली कॉम्प्लेक्स है, हमको पता है प्रोटीन इज हाईली कॉम्प्लेक्स, हाई मॉलिक्यूलर वेट, large number of alpha amino acids are bonded, highly complex, high molecular weight molecule having large number of alpha amino acids. तो जब पेप्सिन एज एन एंजाइम प्रोटीन पे एक्ट करता है तो वो पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट होता, और पॉलीपेप्टाइड फिर ब्रेक डाउन होता है सिंगल अल्फा अमाइनो एसिड्स पे, है ना. ये पॉलीपेप्टाइड्स क्या है? सम 10 अल्फा अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन किया तो उसे हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, और वो पॉलीपेप्टाइड फिर ब्रेक होता है सिंगल अल्फा अमाइनो एसिड्स में. सो लार्ज नंबर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स आर पॉसिबल व्हेन वी कैरी आउट द एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन along with peptide और amide linkage. अब ये amide linkage क्या है? Amide linkage is this CONH. This is peptide or amide linkage. In IUPAC system we call it as secondary amide. So amide or peptide linkage is CONH. इसमें देख रहे हैं आप दोनों टर्मिनल फ्री है तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते होंगे, है ना. अमाइड लिंकेज. अब कैसे अमाइड लिंकेज बनता है तो इसको जल्दी से समझ लेते हैं. लार्ज नंबर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड. अब अल्फा अमाइनो एसिड को लेते हैं, वी टेक 3 moles ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड. देखते जाएंगे किस तरह से लिख रहे हैं. आपको ध्यान क्या रखने का है कि लेफ्ट हैंड साइड में NH2 होना और राइट हैंड साइड में COOH होना, या ऐसा बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड टर्मिनल नाइट्रोजन का रहेगा और राइट हैंड टर्मिनल कार्बन का होगा. दिस इज 1 अल्फा अमाइनो एसिड. वी जॉइन विद द सेकेंड अल्फा अमाइनो एसिड. इसको R1 कर देते हैं, इसको R2. ये सेकेंड अल्फा अमाइनो एसिड हो गया. ऐसा ही थर्ड अल्फा अमाइनो एसिड H2N CH R3 COOH. ये थर्ड अल्फा अमाइनो एसिड हो गया. If these amino acids are condensed together, they form a polypeptide or dipeptide linkage, है ना. This will create dipeptide linkage. Dipeptide linkage कैसे बनेगा इसको देख लेंगे हम. Dipeptide linkage क्या होगा? Carboxyl group of first alpha amino acid and amino group of second alpha amino acid.
likewise here also, ये दोनों रिएक्ट करेंगे आपस में, and when they react they will form an amide linkage with the removal of water molecule. तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो सकता है क्या? H2O. तो देखिए इसको लिखने के लिए मैं कैसा लिख लूँ, ये NH2 है, ये एक H ऊपर गया। अब आप रिमूवल बता सकते हो इजीली, कैसे रिमूवल होगा जल्दी से बोलेंगे। ये देखिए वाटर रिमूवल है ना, -H2O हो गया। क्या ग्रुप दिखा आपको? CO, और यहाँ कौन सा ग्रुप दिखा? NH, करेक्ट है। तो ये NH लिंकेज मिल गया। ऐसा ही यहाँ पर भी होगा कि ये NH2 का एक H में ऊपर लेके जाता हूँ, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH और अमाइनो ग्रुप में से H। तो फिर से यहाँ से -H2O हो गया। -H2O होने के बाद कौन सा लिंकेज दिखाई दे रहा है हमको? CONH लिंकेज। इसको फिर से लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में H2N CR1 H CONH। ये देखिए H को डिलिबरेटली ऊपर लिख रहा है अभी, तो मिल गया हमको CONH, इस तरह का लिंकेज। और इसके साथ क्या ज्वाइन हो गया? ये सेकेंड अल्फा अमाइनो एसिड, then comes CO, then comes NH, and then CR3H COOH, करेक्ट है। तो अब आपको अमाइड या पेप्टाइड लिंकेज कहाँ दिख रहा है? यस, सी हियर, दिस इज अमाइड लिंकेज, दिस इज अमाइड लिंकेज। तो ये दो आपको मिल गए, पेप्टाइड और अमाइड लिंकेज। सो वी गेट हियर पेप्टाइड और अमाइड लिंकेज। दिस एंटायर मॉलिक्यूल is what we call as dipeptide. डाइपेप्टाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो आ गए ग्रुप, कौन से? अमाइड के, तो डाइपेप्टाइड हो गया ये, सही है। तो ये बना डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, ऐसा बनेगा पॉलीपेप्टाइड में। तो ये आपको मिला अमाइड लिंकेज, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड लिंकेज और पेप्टाइड लिंकेज फॉर्मेशन। सही है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। अभी इसको बैलेंस करना है, तो क्या लिखेंगे इसमें? +2H2